fall in a refractive error. Okay, it is taught in cataract, but I decided to teach it in refractive errors, um, because then I will know that I have taught all this, so I can ask you in the viva. Because if I have taught, I know कि ये चीज़ तो पढ़ाई गई है, मतलब एफेकिया में क्या चीज़ पढ़ाई गई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ. So aphakia is a very important topic, especially for your clinical exam. All right. You can be asked questions on aphakia. What is aphakia? How would you identify aphakia in a patient? So you should know all that. So seeing the importance of the topic, I decided to teach it in refractive errors, though this is not really a refractive error. So the term phaco, P-H-A-K-O, right, or P-H-A-C-O, is used for lens. Okay. So if I'm saying, in terms of an ophthalmologist, if I'm saying this eye is phakic, is it phakic or is it aphakic? So what I'm asking the person is, इसकी आँख में lens है कि नहीं है, right? So phakic term we would say, is it a phakic eye? Lens है, ठीक है. Generally, this term is used for the natural crystalline lens. ठीक है. अगर if I'm asking, is it a phakic eye, मैं normal जो भगवान का दिया हुआ lens है उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है. Aphakic eye would mean there is no lens in the eye, right? Now, no lens, not the natural crystalline lens, not an intraocular lens, the artificial lens that we put in after cataract surgery. मतलब कोई भी lens नहीं है. अगर IOL भी है तो हम उसको phakic कहते हैं, but हम कुछ अलग कहते हैं. क्या कहते हैं? Anybody knows? Pseudophakic. Very good. We call it pseudophakic, right? So हम short में PP लिख देते हैं. So if we are saying pseudophakic, so if I'm saying अच्छा the patient is pseudophakic both eyes, that means I'm just trying to say that he has been operated for cataract surgery. Come in. Please stand here. Stand here. Stand here. So if I'm saying pseudophakic, that just means that I'm saying you can put your bag down. Yes. So I'm just saying कि patient की आँख में, if I'm saying कि patient is pseudophakic both eyes, I'm just meaning that both his eyes have an artificial lens. If I'm saying patient is phakic, मतलब उसकी आँख में lens है. IOL के लिए भी use कर सकते हैं. Generally हम lens normal के लिए use करते हैं. And if I'm saying patient is aphakic, means उसकी आँख में lens नहीं है. Right? Now there are two possibilities. Supposing a patient elderly age group में क्या होता है, especially with mature cataract, it is your duty to get everyone to stand here. ठीक है. I will not keep saying this क्योंकि तुम लोग तो आते रहोगे एक एक करके, तो आप ये बोलेंगी. आप अगर 10 को बोल देंगी तो आप जाके बैठ सकती हैं. ठीक है. अगर मुझे घूम के और बोलना पड़ा इधर आओ तुम्हारे रहते, तो तुम बाहर चली जाओगी. Is that absolutely clear? ठीक. So because I don't like, we are in a flow ना, we are trying to teach something. आप लोग एक एक करके आ रहे हैं, इतना इरिटेशन होता है. पहले क्यों नहीं आके बैठ जाते हो 5 मिनट पहले? When you know I start my class at 2. Anyway. So, right. So I was saying कि when we are saying कि patient aphakic है, right? So supposing there's a scenario, and let me give you the exact scenario. Old age में, especially जब cataract mature हो जाता है या hyper mature हो जाता है, तो जो zonules हैं old age में anyway बहुत weak हो जाते हैं. Old age में everything, पूरा शरीर ही शिथिल पड़ने लगता है, right? So जो zonules हैं which are keeping the lens in place, they become very weak. Supposing ऐसे बुढ़े इंसान का लड़ाई झगड़ा हो गया, right? और उसको किसी ने बॉक्स मारा and the lens, पूरे zonules टूट गए and the lens falls in the vitreous cavity, right? So अगर हम ऐसे बाहर से देखेंगे तो हमको pupillary area में तो लेंस दिखेगा नहीं, बट आँख में लेंस है, पीछे पड़ा हुआ है vitreous cavity में लेंस है. So this is section A, this is section B. So my question to section B is, would we call such an eye an aphakic eye or it is a phakic eye? Because lens है आँख में, बस अपनी जगह पे नहीं है. Section B. Huh? Or what would we say? Is it a phakic eye, or how many feel we should call it a phakic eye? Just by raising your hands. हाथ तो उठाना पड़ेगा क्योंकि इसने एक बच्चे ने उठाया. जो बच्चे हाथ नहीं उठाएंगे उनको मैं बाहर कर दूंगी. Okay. How many feel that it is still a phakic eye because there is a lens in the eye? 1, 2 और उठाओ. ठीक है. I'm just noticing कौन लोग नहीं उठा रहे हैं क्योंकि अगली बार भी नहीं उठाओगे तो बाहर जाओगे. Right. ठीक है.
How many feel that it is an aphakic eye? All right, majority. Right. So आप लोग को क्या लगता है, majority correct थी कि minority correct थी? Majority correct थी. If the lens is not in its place, it is an aphakic eye. हमको कितना भी pupil dilate करके अगर लेंस नहीं दिख रहा है और जिस एरिया में लेंस रहता है ना, हम उसको pupillary fossa कहते हैं, you can say, sorry, patella fossa कहते हैं, right? Patella fossa. So उस एरिया में अगर हमको लेंस नहीं दिख रहा है, हमने पूरा प्यूपल भी डायलेट कर दिया, हमने ढूंढ लिया, अपने एरिया में जस्ट बिहाइंड द प्यूपल लेंस जहां होना चाहिए वहां नहीं है और उसका कोई भी हिस्सा नहीं दिख रहा है. अगर एक और सिनारियो हो सकता है कि उतना जोर से मुक्का नहीं पड़ा था बुढ़े बाबा को, तो उनका लेंस के कुछ जोन्यूल्स तो टूट गए और लेंस ऐसे नीचे सरक गया. हमने जब प्यूपल डायलेट किया तो हमको कुछ एरिया तो दिख रहा है जहां लेंस नहीं है, लेकिन हमको सरका हुआ लेंस का एज दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि हाँ ये इतना नीचे आ गया है. सो ऐसे में हम एफेकिक बोलेंगे पेशेंट को कि फेकिक बोलेंगे कि क्या बोलेंगे है? या सो वी विल जस्ट से दैट इट इज अ सबलक्सेटेड लेंस. ठीक है, इट इज अ सबलक्सेटेड लेंस. अगर कुछ जोन्यूल्स टूट गए हैं और लेंस अपनी जगह से थोड़ा सा सरक गया है, बट इट इज स्टिल इन द प्यूपिलरी एरिया और यू कैन सी सम पार्ट ऑफ द लेंस इन द प्यूपिलरी एरिया, वी कॉल इट सबलक्सेशन ऑफ द लेंस. और जो मैंने पहला सिनारियो बताया था जहां ऑल द जोन्यूल्स आर ब्रोकन एंड द लेंस हैज फॉलन either into the vitreous cavity or sometimes anteriorly also, it can come into the anterior chamber, so it is totally not in its place. So कहीं पीछे गिर गया, आगे गिर गया, then that is हनी ए फेंकिया तो ठीक है, आगे गिरेगा तो हम शायद ए फेंकिया. तो हम क्या बोलेंगे, सबलक्सेशन बोलेंगे कि क्या बोलेंगे हैं? आप लोग को आंसर आता है तो बोल के बैठ सकते हैं, आई हैव नो इश्यूज. हम तब डिसलोकेशन बोलेंगे, द लेंस इज डिसलोकेटेड. सो डिसलोकेशन मीन्स ऑल द जोन्यूल्स आर ब्रोकन, लेंस हैज टोटली फॉलन अवे समवेयर एल्स, राइट? यू कांट सी इट इन द प्यूपिलरी एरिया. Subluxation is part of the zonules are broken and you can see the tilted lens, the hanging lens, थोड़ा सा हिस्सा आपको pupil dilate करने पे दिख सकता है. So anyway, with that background, so okay, so let us start. So aphakia means absence of the crystalline lens from the eyeball. Optically, it means the crystalline lens is absent from its normal anatomical position in the patella fossa. ठीक है, patella fossa actually जो विट्रियस होता है ना, उसके आगे एक हल्का सा ऐसे करके एक कह लो एक कॉन्केविटी सी रहती है, एक फॉसा टाइप का बन जाता है, उसमें लेंस रहता है. सो विट्रियस का जो एंटीरियर फेस होता है उसमें पटेला फॉसा ऐसे बना रहता है. नाउ यू ऑल नो कि आंख का थिक लेंस सिस्टम मैंने बहुत पढ़ाया, आप लोग को डॉन्डर्स आई है वो बहुत पढ़ाया है. ठीक है, कन्वर्जिंग सिस्टम. सो आंख का कन्वर्जिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स. क्या क्या है वो? कॉर्निया एंड लेंस, राइट? तो अगर आंख से लेंस ही गायब हो गया, और लेंस कितने डायप्टर्स कंट्रीब्यूट करता है? उल्टा टांग देंगे 45 बोलोगे तो. यहां खड़े होके गलत आंसर नहीं देना है. 15, अराउंड 15 डायप्टर्स, राइट? 45 कॉर्निया करता है बेटा. ठीक है. एक लड़का पीछे से घुसा था ना, अभी आया है कोई? अच्छा, वहीं घूम रहा है वो. ठीक है. सो अब किसी की आंख से लेंस गिर गया, किसने पहले इसको बोला इधर खड़े होने को? तुम दोनों में जल्दी बताओ, हाथ उठाओ. तुमने बोला, तुम बैठ जाओ. राइट. सो अगर आंख से क्रिस्टलाइन लेंस को हटा दिया जाएगा, अब अकेले कॉर्निया कन्वर्ज करा रहा है, वो रेटिना पे फोकस करा लेगा कि रेज रेटिना के पीछे जाके फोकस होंगी कि आगे फोकस होंगी? पीछे फोकस होंगी, क्योंकि देर में फोकस होंगी. अकेला काम कर रहा है ना, जो काम दो इंसान मिलके कर रहे थे वो अकेला कॉर्निया कर रहा है, क्या ही करेगा? तो वो रेटिना तक तो नहीं फोकस करा पाएगा, पीछे जाके फोकस होंगी कहीं. तो आई हाइपरमेट्रोपिक हो जाएगी कि मायोपिक? हाइपरमेट्रोपिक हो जाएगी. तो एफेकिक आई इज ऑलवेज हाइपरमेट्रोपिक. करेक्ट. So causes of aphakia. Congenital is rare. इसमें या तो primary failure of development of lens होगा या secondary lens is formed but it is absorbed in utero. ठीक है. So
सो कंजेनिटल एफेकिया रेयर है। दूसरा है अक्वायर्ड। अक्वायर्ड में पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट ट्रॉमेटिक या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हो सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब हमने कैटरैक्ट सर्जरी की और हमने लेंस को निकाल दिया, ठीक है। नाउ हम कैटरैक्ट सर्जरी इसलिए नहीं करते हैं कि हम लेंस निकाल करके और पेशेंट को एफेकिक छोड़ दें। हमको लेंस निकालने के बाद उसमें एक IOL डालना होता है, राइट। उधर से भी ऑल डोर्स आर अंडर योर कंट्रोल, राइट, ऑल डोर्स। बाहर चली जाओगी बेटा, डू योर जॉब प्रॉपर्ली। तुम बोलो ठीक से, तुमको मैं बैठा दूंगी। Where's the third guy? अरे 3 लोग आए थे, तीसरा कहाँ है? हाँ, स्ट्राइप शर्ट, इधर आओ। तुम बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। अब कोई लेट आएगा, जिसने उसको यहाँ खड़ा कराया वो जाके बैठ सकता है, ठीक है। अब आप आशा करिए कि कोई लेट आए, वैसे मेरे क्लास में आएंगे नहीं बच्चे, बस ठीक है। सो पोस्ट ऑपरेटिव बहुत तुम लोग को इंटरेस्टिंग बात बताएंगे। डू यू नो द फर्स्ट कैटरैक्ट सर्जरी was done by who is known as the father of surgery? Sushrut. So I think it was Sushrut only, not Charak, na? Sushrut only. Anyway, just check. Anyway, most probably it was him only, Sushrut. So anyway, पुराने ज़माने में यू नो कैटरैक्ट सर्जरी कैसे करते थे, लोग काउचिंग करते थे, एक नीडल डाल के और पुश कर देते थे लेंस को। रिमेंबर ओल्ड एज में एंड मैच्योर कैटरैक्ट में ज़ोन्यूल्स वीक हो जाते हैं, सो यू कैन एक्चुअली, आप यंग पेशेंट में नहीं पुश करके लेंस को पीछे गिरा सकते हैं, बट पुश कर देते थे। सो देखो, पुश करने से पेशेंट हाइपरमेट्रोपिक तो हो ही जाएगा, राइट, लेकिन बिल्कुल ही लाइट अंदर नहीं जाना एक ओपेक चीज है से आप कंपेयर करिए। एफेकिक आई में रफली पेशेंट 2 मीटर्स फिंगर काउंट तक का विजन आ जाता है, से कंपेयर टू दैट 2 मीटर्स फिंगर काउंट, इट इज स्टिल गुड। तो इस तरह की वेरी बेसिक वेरी रडिमेंट्री सर्जरी को काउचिंग कहते थे पुराने जमाने में। दैट वाज द काइंड ऑफ सर्जरी दैट यूज्ड टू बी डन। हु इज गूगलिंग वेदर इट वाज सुश्रुत और चरक और हु? प्लीज गूगल। काउचिंग करो, इंडियन सर्जन करो, कुछ ऐसा करो, राइट। आई थिंक इट वाज सुश्रुत ओनली, बट एनीवे। सुश्रुत है, ठीक है, सुश्रुत थे। सो इमेजिन कितना पहले, मतलब ये सब सर्जरी कैसे करते होंगे, नीडल डाल के और उसको प्रेस कर देते थे, राइट। सो पोस्ट ऑपरेटिव, रिमेंबर, हम कैटरैक्ट सर्जरी ही इसलिए करते हैं कि हम इस ओपेक लेंस को निकाल के और एक ट्रांसपेरेंट इंट्राऑक्यूलर आर्टिफिशियल लेंस को आंख में रख दें। एंड क्योंकि लेंस ना एक कैप्सूल से पूरा कवर्ड रहता है आगे पीछे चारों तरफ, सो हम कैप्सूल का एंटीरियर पार्ट काट देते हैं, कैप्सूलर बैग उसका एक थोड़ा सा एंटीरियर रिम और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कैप्सूल रहता है, उसमें से हम लेंस को निकालते हैं और ये जो कैप्सूलर बैग बचता है, थोड़ा सा एंटीरियर रिम और बाकी पूरा पोस्टीरियर कैप्सूल, हम उसमें आर्टिफिशियल लेंस रखते हैं। इन द बैग प्लेसमेंट इज द करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ द लेंस, ठीक है। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रॉन्स, राइट, 4 माइक्रॉन थिकनेस होता है कैप्सूल का। सो इनएडवर्टेंटली या समटाइम्स पोस्टीरियर पोलर कैटरैक्ट होता है, कई बार कैप्सूल पोस्टीरियर कैप्सुलर रप्चर कहते हैं, पीसीआर हो जाता है, राइट। सो अगर ऐसे पोस्टीरियर कैप्सुलर रप्चर हो जाए, सो आप और बहुत बड़ा हो तो आप फिर लेंस को नहीं टिका सकते हैं कैप्सूल पे। यू कैन ट्राई फॉर अ सल्कस फिक्सेटेड लेंस, एन आइरिस क्लॉ लेंस और समथिंग एल्स, ठीक है। बट पोस्ट ऑपरेटिवली अगर आपने पेशेंट को एफेकिक छोड़ा है इन मॉडर्न डे कॉन्टेक्स्ट, देन इट इज नॉट नॉर्मल, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है, इट इज नॉट नॉर्मल। पोस्ट ऑपरेटिवली या कैटरैक्ट सर्जरी इज डन टू प्लेस एन IOL। अगर IOL नहीं डाला गया, इट इज प्रोबेबली बिकॉज द सर्जन
was unable to place an IOL due to any reason. जैसे अभी हाल में हमारी डिपार्टमेंट में एक सर्जरी हुई, सूडो एक्सफोलिएशन था. सूडो एक्सफोलिएशन इज अ काइंड ऑफ ग्लोकोमा. उसमें इतने ज़्यादा जोन्यूल्स वीक हो जाते हैं, प्यूपल नहीं डायलेट करता है, इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं, किसी तरह लेंस बस टिका रहता है, आपको प्री ऑपरेटिवली दिखता है कि लेंस एकदम हिल रहा है बिकॉज आधे जोन्यूल्स. तो लेंस तो सर्जन वाज गुड, सर्जन ने लेंस तो निकाल लिया, बट जैसे ही लेंस निकाला द कैप्सूल जस्ट सॉर्ट ऑफ क्रम्पल्ड. देयर वाज नो वे इट कुड हैव हेल्ड, क्रम्पल्ड क्या, इट ऑलमोस्ट केम आउट. सो देयर वाज नो वे इट कुड हैव सपोर्टेड एन IOL. सो द सर्जन हैड टू लीव दैट पेशेंट aphakic. Okay, so this is post operative. Post traumatic following blunt trauma or penetrating injury can cause dislocation of the lens. Remember, for a lens to fall back, it has to be totally dislocated from its place. तो trauma is easy to understand, और penetrating भी हो सकता है, blunt भी हो सकता है. ठीक है. पोस्ट इन्फ्लेमेटरी फॉलोइंग परफोरेटेड लार्ज कॉर्नियल अल्सर. अगर बहुत बड़ा कॉर्नियल अल्सर है, हील नहीं कर रहा और इतना, तो अगर वो कॉर्नियल अल्सर परफोरेट करता है, मतलब फुल थिकनेस कॉर्नियल डिफेक्ट हो जाता है. मतलब कैसे होगा, वो कॉर्नियल अल्सर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. कॉर्निया इज हाउ मेनी लेयर्स थिक, कितनी लेयर्स होती हैं कॉर्निया में? 6 लेयर. वेरी गुड, वेरी गुड. 6 लेयर्स होती है कॉर्निया में. ठीक है. तो बैक्टीरिया खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, उसने सारी लेयर्स को एकदम से मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया. राइट. सो गो एंड सिट डाउन एंड नेक्स्ट टाइम प्लीज कम ऑन टाइम ऑल ऑफ यू. और एकदम से जब परफोरेट होगा, देयर विल बी अ गश ऑफ विट्रियस आउट, देयर विल बी अ गश ऑफ एक्वस, एंड साथ साथ कभी कभी लेंस भी, बिकॉज सडन चेंज इन प्रेशर होता है ना, आई एकदम, तो द लेंस माइट ऑल्सो बी एक्सट्रूडेड आउट. राइट. सो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी फॉलोइंग परफोरेशन ऑफ अ लार्ज कॉर्नियल अल्सर. सो सिम्टम्स में क्या हो जाएंगे? मार्क डिमिनिशन ऑफ विजन. नाउ मार्क डिमिनिशन ऑफ विजन आई एम टॉकिंग पर से फॉर एफेकिया. अब अगर कोई मैच्योर कैटरैक्ट वाला पेशेंट है और आपने उसको एफेकिया दे दिया, तो वो तो एक तरह से उसको पहले जितना दिख रहा था उससे बेटर दिखेगा, बिकॉज रिमेंबर मैच्योर कैटरैक्ट में विजन इज ओनली PLPR. ठीक है. मैच्योर कैटरैक्ट में विजन इज परसेप्शन ऑफ लाइट एंड प्रोजेक्शन ऑफ रेज. हैंड मूवमेंट भी नहीं दिखता है पेशेंट को. हैंड मूवमेंट दिख सकता है, फिंगर काउंट भी नहीं दिखता है. ठीक है. हैंड मूवमेंट या PLPR होगा मैच्योर कैटरैक्ट में. विजन मतलब इससे ज्यादा नहीं होगा. ओके. सो अगर ऐसे पेशेंट को एफेकिया देंगे तो उसको अब 2 मीटर फिंगर काउंट है थोड़ा डिस्टेंस पे, तो वो पेशेंट तो खुश ही हो जाएगा. राइट. बट पर से फॉर एफेकिया विजन इज लेस. सो एफेकिक पेशेंट में विजन क्या रहता है? पुअर रहता है. पुअर. ठीक है. अनलेस इट इज करेक्टेड. ठीक है. सो साइंस ऑफ एकिया: मार्क्ड रिड्यूस विजुअल एक्विटी, फिंगर काउंट 2 to 3 feet रहेगा. ठीक है. 2 to 3 feet रहेगा. पेशेंट इतनी दूर तक बस थोड़ा सा उंगली गिन पाएगा. कॉर्नियोस्क्लेरल या कॉर्नियल स्कार मिल सकते हैं या सूचर्स मिल सकते हैं. ये क्यों मिलेंगे आपको? ये क्यों मिलेंगे और या कब मिलेंगे? कॉर्नियोस्क्लेरल स्कार या सूचर्स या कॉर्नियल स्कार है. वेरी गुड. अगर एफेकिया इज सेकेंडरी टू कैटरैक्ट सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव एफेकिया है, तो आपको ये सब मिलेगा. अब एफेकिया लड़ाई झगड़ा करके और लेंस पीछे टपक गया है, तो थोड़ी ना कॉर्नियोस्क्लेरल स्कार और सूचर्स और ये सब मिलेंगे. ठीक है. पोस्ट ऑपरेटिव केसेस में आपको ये मिलेगा. डीप एंटीरियर चेम्बर. एंटीरियर चेम्बर इज द स्पेस बिटवीन विच 2 स्ट्रक्चर्स. 1 minute. Wait. Where is Sarah sitting? She has not come today. Oh my goodness. Like she's absent for all my classes. Please tell her ma'am was missing you and remembering you very lovingly. Please tell her that. I'll show all my love in the Viva. Where is Shivangi sitting? Okay, please stand up. What is anterior chamber? Very good. Very nice. Sit down. So the space between the lens in the pupillary area and iris and the cornea. इधर लेंस आयरिस है और आगे कॉर्निया है. ठीक है. ये जो स्पेस है इसको हम एंटीरियर चेम्बर कहते हैं. अगर आप लोग एक दूसरे, तुम लोग ना क्लिनिक्स में आते हो, पहले तो मतलब लाइक इतना हम लोग इंसिस्ट करते थे, सब बच्चे टॉर्च लेके आते थे, हम लोग पेशेंट दिखाते थे. अब तो तुम लोग आते हो, फोन लेके आते हो, अंदर घुस के बैठ जाते हो. पता नहीं पेशेंट देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख रहे हो ना. गुड गुड. सो पेशेंट देखते रहो. नहीं भी कोई पेशेंट है उस समय जब आप तुरंत आए हैं, तो एक दूसरे की आंख को देखा करो.
you will appreciate the distance between the cornea and the iris, right? ठीक है. So आपको ये जो distance दिखेगा ना, ये आपको लगेगा कि अच्छा कॉर्निया यहाँ है और देखो आइरिस इतना पीछे और ये डिस्टेंस है. इट इज 2 to 3 मिलीमीटर्स रफली. ठीक है, अराउंड 3 मिलीमीटर्स. अगर ये आइरिस बहुत आगे आ गया किसी पेशेंट में और आपको दिखेगा कि ये कॉर्निया आइरिस देखो कितना एकदम पास पास लग रहा है, चिपका हुआ टाइप का. ठीक है, एकदम पता चलता है वो, आप टॉर्च लाइट में देख सकते हैं. ठीक है. सो अगर ये कॉर्निया और आइरिस के बीच का डिस्टेंस ज्यादा बढ़ गया है तो वो भी आपको पता चलेगा कि बाप रे इसका कितना डीप है. और वो देखना बहुत आसान है. आप उसकी नॉर्मल दूसरी आंख देख लीजिए. अगर दोनों आईज एक एक है तो किसी और की देख लीजिए. एक रफ आइडिया मिला कि अच्छा ये डिस्टेंस टॉर्च लाइट में ऐसे लगता है. आप साइड से लाइट जलाइए, आपको इतना. उसके बाद आप जा करके इस पेशेंट में देखिए, आपको लगेगा अच्छा कितना ज्यादा डिस्टेंस. ये ज्यादा डिस्टेंस क्यों है भाई? हु विल टेल मी ज्यादा डिस्टेंस क्यों है? Why is there deep anterior chamber in aphakia? The girl in the green t-shirt. Acha, you are the girl who sang the song. Yeah. I've forgotten your very beautiful name though. You had a what is your name? Shubhosmita, है ना? Such a pretty name. चलो बताओ बेटा. नहीं लेंस, अरे यार एफेकिया की बात कर रहे हैं ना, आंख में लेंस है ही नहीं. हाँ क्यों? लेंस नहीं है तो डिस्टेंस क्यों इंक्रीज हो जाता है? डिस्टेंस बोलता है चलो चलो लेंस नहीं, चलो मैं इंक्रीज हो जाता हूं. ऐसा है क्या? आपके बगल में जो लड़की वो सोच रही है. हाँ खड़े हो जाइए, आप बैठ जाइए. बताइए. कॉमन सेंस आंसर है यार, तुम लोग कॉमन सेंस भी नहीं यूज करते हो. ये जो लड़का बैठ के हाथ मल रहा है, उठो. हाँ बेटा कॉमन सेंस, कॉमन कितना यार, कॉमन सेंस इज नॉट रियली नॉट कॉमन एनी मोर. गर्ल इन द ब्लैक टॉप एंड बॉय इन द ब्लैक शर्ट, दोनों खड़े हो जाओ. बॉय इन द ब्लैक शर्ट ढूंढ रहा है, कोई और मिल जाए मुझे ब्लैक शर्ट में, मैं उसको अपनी जगह खड़ा करा दूंगा. गर्ल इन द ब्लैक टॉप ऑल्सो. बेटा क्यों डिस्टेंस भाई? वाई एफेकिया में एंटीरियर चेम्बर डीप हो जाता है? बेटा लाइट किसी भी चीज को ना, किसी भी चीज को तोड़ मरोड़ नहीं सकती अनलेस भूत हो. मैंने तो आज तक नहीं सुना कि लाइट में फिजिकल पावर है कि यार वो कुछ कर दे. ऐसा तो नहीं है. प्लीज आप बैठ जाइए, आपने मुझे डरा दिया. आप लोग बताइए. हैं? एंटीरियर चेम्बर में क्या हो जाता है? प्रेशर? नहीं, प्रेशर को कुछ नहीं होता है. आप भी बैठ जाइए. आप मुंह तो खोलिए. हे भगवान. तुमको स्ट्रक्चर्स भी पता है आई के? बोलो. बाहर से अंदर. कॉर्निया पीछे जाके क्या बन जाता है? नहीं पता है तुमको? बेटा पढ़ते रहो. टर्मिनल तो अभी ही होगा. जो बच्चे एब्सेंट है उनका भी टर्मिनल अभी होगा, उनका वाइवा भी अभी होगा. फाइनली हमें तो फाइनली होगा. आप बताइए क्यों डीप हो जाता है एंटीरियर चेम्बर? कॉमन सेंस. आप बताइए. किसको बताने का मन है भाई? एक मिनट बेटा. देखो, why are you people talking in terms of refraction? मैं फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ ना. आइरिस एक फिजिकल स्ट्रक्चर है, इसमें पावर, लाइट, रिफ्रैक्टिव एरर से क्या लेना देना हमें? हमको दिख रहा है कि आइरिस और कॉर्निया के बीच का जो डिस्टेंस था, अब क्योंकि लेंस नहीं है आंख में तो ज्यादा हो गया है. ये दो फिजिकल स्ट्रक्चर्स का डिस्टेंस क्यों बढ़ गया है? ये कितना कॉमन सेंस बात है भाई. आंख में लेंस नहीं है वो भी मैं बोल रही हूँ. बताइए आप. नहीं, आप बताइए. रिजुल तुम बताओ. बहुत ट्रैकिंग पे जाते हो सर के साथ? बताओ क्यों हो गया है? रेफरेंस पॉइंट आइरिस था ना, वो क्यों पीछे हो गया है? कॉर्निया हिल सकता है? कॉर्निया हिला सकते हैं आप लोग अपना? नहीं हिला आप बताइए.
अरे आप खड़े होइए। सौमिल, एक तो गेट अ हेयर कट प्लीज टुडे। बताइए, इतना इंटेलिजेंट है ये लड़का, क्यों डिस्टेंस बढ़ गया है? हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे भाई रिजुल, बताओ। लेंस, बेटा मैं एफेकिया की बात कर रही हूँ। एफेकिया में लेंस पीछे नहीं हुआ, लेंस है ही नहीं आंख में भाई, लेंस है ही नहीं। तो क्यों एंटीरियर चेम्बर डीप हो गया? अरे भैया, तुम लोग और बताएं क्यों नहीं आंसर बता पा रहे हो सबके सब? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ, बैठ जाओ सब लोग, बैठ जाओ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम सब लोग ये नीट की तैयारी करके आते हो, पढ़ के आते हो, उसके बाद से ना तुम लोग पढ़ना बंद कर देते हो, मुझे ऐसा लगता है। और हम लोग के ईयर में आते आते तो तुम लोग सोचते हो तो पार्टी वाला ईयर है, इसमें तो पढ़ना ही नहीं है। 8th में, when we were in 8th, I could draw transverse section of the eye, which if I draw today, it would be accurate for ophthalmology for MBBS level. MBBS छोड़ दो, for any level. 8th में हम लोग को सिखाया गया था, खैर मैंने ICSE किया था, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द आई। अगर आपको ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द आई आता है तो आप लोग ये जवाब तुरंत दे देंगे, because when you draw the transverse section, you will know that the iris lightly rests on the lens. It is not that the iris is here and the lens is there. iris का, अगर ये लेंस है और पेशेंट ऐसे लेटा हुआ है, ठीक है, अगर ये लेंस है, पेशेंट का सर ऊपर देख रहा है, तो आइरिस लेंस के ऊपर लाइटली रेस्ट करता है। आइरिस इज अ वेरी फ्लैपी काइंड ऑफ थिंग, लाइक अ चद्दर काइंड ऑफ थिंग, राइट? अगर आपने पीछे से उसका ये सपोर्ट लेंस निकाल दिया, देन द आइरिस विल फॉल डाउन। It is as simple as that. If the iris will fall down because now there is no support of the huge lens behind it, then the distance between iris, जब लेंस था तो आइरिस यहाँ था, कॉर्निया ये है, और जब लेंस निकाल दिया तो आइरिस ऐसे हो गया। यहाँ पे तो जुड़ा हुआ है आइरिस, लेकिन प्यूपिलरी एरिया में थोड़ा सा तो एंटीरियर चेम्बर डीप हो जाएगा। You people cannot answer it because you do not know the transverse section of the eye. That is as simple as that. And if I ask you to draw, all of you will draw a transverse section of the eye. All of you. And you will WhatsApp it to me. All of you. I have your roll numbers. All of you will WhatsApp it to me. ठीक है? And the best 10 transverse, and I don't want the transverse section जो खुराना में जिसमें ऐसे ऐसे करके उन्होंने मोड़ के दिखा. I want a clean transverse section that should be accurate ophthalmologically. ठीक है? Clean. मतलब सिर्फ कटा हुआ है और सारी लेयर्स दिख रही हैं, सब कहाँ है, ठीक है? आप लोग मुझे व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पर, एंड द बेस्ट 10 विल गेट अ अप्रिसिएशन फ्रॉम मी इन माय नेक्स्ट क्लास. बेस्ट 10 इफ देयर आर मोर देन 10. ये जो पीछे जो बच्चे इतना हंस रहे हैं बेटा, मुझे दिख रहा है, मैं बाहर निकाल दूंगी, गुस्सा मत दिलाओ. क्या नाम है आपका, बताइए. बीच में जो बैठा है बेटा, बताओ बताओ बताओ. ऋषभ, देखो अच्छी बात है ना, यंग बच्चों को खुश रहना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे 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 करके खुश हो गए तो टीचर को गुस्सा आ जाएगा. ठीक है, ऐसे खुश रहो, है ना, ऐसे ऐसे खुश रहो. पर ऐसे ऐसे छुप छुप करके और इधर उधर बोल बोल करके होगे तो मैं बाहर निकाल दूंगी. डीप एंटीरियर चेम्बर में मैंने लिटरली 10 मिनट बिता दिए. अब आप लोग भूलिएगा मत कि भैया एफेकिया में डीप एंटीरियर चेम्बर होता है. आइरिडोडोनेसिस, ट्रेम्युलसनेस ऑफ द आइरिस. ऋषभ खड़े हो जाओ बेटा. ये जो 4th पॉइंट है ये क्यों होगा, जो मैंने बताया है उसी के बेसिस पे बताओ. आइरिडोडोनेसिस का मतलब होता है ट्रेम्युलसनेस. पहले तो ये बताओ, ट्रेम्युलसनेस का मतलब आप समझ रहे हैं? ठीक है, ट्रेम्युलसनेस मीन्स ट्रेम्बलिंग. ट्रेम्बलिंग, ठीक है. लाइक द न्यूली वेड ब्राइड stood tremulous in front of her groom. समझ गए? वो हल्की शर्माती कांपती खड़ी थी अपने दूल्हे के सामने. समझे? इंग्लिश में पढ़े हो? गुड. तो ट्रेम्युलसनेस मीन्स ट्रेम्बलिंग ऑफ द आइरिस. अगर पेशेंट आंख हिलाता है ना तो आपको आइरिस ऐसे 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 हिलता हुआ दिखेगा. इसको क्या कहते हैं, वर्ड बोलो जरा. ट्रेम्युलसनेस तो मीनिंग है बेटा, उसके आगे जो वर्ड है वो बोलो. जोर से बोलो ना भाई. What is wrong with him? You please sit down. You're wasting my time. है?
बेटा वाइवा देने मेरे सामने आओगे? याद रखना, तुम यहाँ पे कर लो तुमको जितना मजाक करना है तो बोलो ना फिर क्या है लिखा हुआ है तो। हाँ वाह, डांटते ही इनका कितना वॉल्यूम भी सही हो गया कुरान से। आयरिडोडोनेसिस क्या मतलब होता है इसका? समझ गए बेटा, है ना? आइरिस इज ट्रेम्बलिंग, ठीक है। क्यों ट्रेम्बल कर रहा है आंख हिलाने पे? वो तो सभी का होता है, लेकिन तुम्हारी आंख में मुझे थोड़ी ना आयरिडोडोनेसिस मिलेगा, एफेकिया में मिलता है। क्यों मिलता है? सुन ही नहीं रहा था क्योंकि ये इसको तो बगल वाले से बकवास कर करके हंसना था अपने ही जोक्स पर। खड़े रहिए आप। क्यों मिलेगा? सबको पता है, बिकॉज देर इज नो सपोर्ट ऑफ द लेंस। एग्जैक्टली। नाउ कमिंग टू जेट ब्लैक प्यूपल। नाउ सी देर आर टू टर्म्स। अगर आप दोनों टॉर्च जला के एक दूसरे का प्यूपल देखेंगे तो आप देखेंगे ब्लैक प्यूपल। ये क्लास ही नहीं खत्म होगा। तुम लोग इतना मुझको गुस्सा दिलवा के और डटवा लेते हो खुद को कि मेरा क्लास ही नहीं खत्म होगा, इतना छोटा टॉपिक है जबकि। सो जेट ब्लैक प्यूपल हम टर्म केवल एफेकिया में यूज करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल लोग जिनमें की जो फेकिक हैं, जो आप लोग हैं जिनमें ट्रांसपेरेंट लेंस है, उसमें हम ब्लैक प्यूपल यूज करते हैं टर्म। जेट ब्लैक और ब्लैक में डिफरेंस है, और वो डिफरेंस इतना अपेरेंट है। अगर आपने टॉर्च लाइट में एक फेकिक आई देखी है यंग किसी इंसान की जो ट्रांसपेरेंट लेंस है जैसे एक दूसरे की, और मैं आपको एक एफेकिक पेशेंट का प्यूपल दिखाऊं, आप लोग को ब्लैक और जेट ब्लैक कलर में एकदम ऑब्वियस डिफरेंस पता चलेगा। एंड आई विल टेल यू व्हाई। ठीक है, सिट डाउन। द डिफरेंस इज, even though we say that the lens is transparent, it does reflect some amount of light back to us. ठीक है? All the light does not go into the eye and stay there. Some percentage, a small percentage of light is reflected back into our eye, right? So कोई भी ऑब्जेक्ट परफेक्टली ब्लैक तब होता है जब उस पर जो भी लाइट पड़े वो सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर ले, है ना? परफेक्टली ब्लैक, उतना ही ब्लैक, राइट? सो जेट ब्लैक प्यूपल जो एफेकिया है उसमें बिकॉज देयर इज नो लेंस, तो जो भी आप लाइट डालेंगे वो पूरी आंख के अंदर चली जाती है, राइट? सो वो एकदम एब्सोल्युटली ब्लैक लगेगा प्यूपल। हम लोग टॉर्च लाइट में पेशेंट को देख के एफेकिया डायग्नोज कर लेते हैं, और आप लोगों को भी कर लेना चाहिए। क्लिनिक्स में आते हैं तो हमारे जो JRs हैं प्लीज उनसे बोलिए कि आप लोग जो भी बोलते हैं, बॉस दीदी जो भी बोलते हैं, कि अगर कोई एफेकिक पेशेंट है तो हमें दिखाइए। एंड यू सी दैट, एंड देन यू लुक एट द ब्लैक प्यूपल ऑफ योर फ्रेंड्स आई, and then you look at the aphakic eye, and then you will see what is jet black and what is black, right? Now, absence of third and fourth Purkinje images in ICC, and third image only in ECC. Now, remember, anyone knows what are Purkinje images, right? So, अगर हम एक पेशेंट को ब्लैक रूम में, डार्क रूम में ले जाए और एक ब्राइट लाइट उसकी आंख में शाइन करे, तो वो लाइट 4 स्ट्रक्चर्स से हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होगी। एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस। सपोजिंग जो बुक्स में डायग्राम बना रहता है एक कैंडल का बना रहता है, और वो दिखाते हैं कि फर्स्ट पर्किंजे इमेज एक कैंडल, सेकंड एक कैंडल, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस से एक कैंडल, और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस क्योंकि कॉन्केव है तो उल्टी कैंडल। ठीक है? पर्किंजे इमेजेस इज अ, आपको कॉर्नियल वाली तो आराम से दिख जाएंगे। अभी भी आप एक दूसरे के आंख में लाइट जलाएंगे तो आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्स दिखती है, ठीक है? एंटीरियर फर्स्ट पर्किंजे इमेज तो आराम से ही दिख जाती है, ठीक है? सो पर्किंजे इमेज, बट एनीवे इज अ मोर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बट यू शुड नो ICC जो सर्जरी होती है ना, उसमें हम लेंस पूरा निकाल लेते हैं और कैप्सूल सब निकाल लेते हैं। तो क्योंकि स्टैंड अप, कीप योर फोन हियर and leave the class. I know you're sorry, that's why I'm not taking the phone. I'll give it back to you. हाँ मैं समझ गई, रखो यहाँ पे। Leave. I know, I forgive you. Please leave. नहीं, I know you won't do. Please leave. You're wasting my time. बेटा टाइम ही नहीं है मेरे पास, जाओ। So
आई फाइंड एनीवन वाचिंग व्हाट्सएप, ठीक है ना, आई एम टेकिंग योर फोन, माई फोन इज ओल्ड, आई टोल्ड यू इन माई लास्ट क्लास, आई नीड टू चेंज इट। जिसका बेस्ट होगा मैं लेके रख लूंगी। मैं हर साल लेती हूँ, आप अपने सीनियर बैच से पूछ सकते हैं। मैंने आज तक फ़ोन नहीं खरीदा है। 2002 से पढ़ा रही हूँ शायद, तब से मेरे पास फ़ोन स्टूडेंट्स का ही आता है। 2002 में आया था मोबाइल फ़ोन? आया ही नहीं था, आ गया था, ठीक है, हो सकता है तब से ले रहे हो। एनीवे, सो एंड समटाइम्स आई चेंज इट मेनी टाइम्स इन अ ईयर, आई डू दैट ऑल्सो। सो पर्किंजे इमेज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? डार्क रूम में ब्राइट लाइट अगर हम किसी की भी आंख में चमकाएं तो हमको 4 रिफ्लेक्सेस वापस दिखती हैं। एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया, एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड पोस्टीरियर। आईसीसी जो सर्जरी है, इट इज इंट्राकैप्सुलर, ये आप लोग कैटरैक्ट में पढ़ेंगे, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। इंट्राकैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, उसमें हम पूरा लेंस और कैप्सूल निकाल लेते हैं। जब लेंस और कैप्सूल है ही नहीं तो हमें 2 ही पर्किंजे इमेजेस मिलेंगी, ठीक है। तो एफेकिया में आपसे मैं पूछूंगी वाइवा में कितनी पर्किंजे, क्योंकि मैं पूछती हूँ साइंस ऑफ एफेकिया बताओ तो तुम लोग बताए 2 या 3 बताते हो। मैम जेट ब्लैक प्यूपल, मैम ये, इसलिए मैं एफेकिया पढ़ा रही हूँ कि कम से कम मैं साइंस पढ़ा रही हूँ तो तुम लोग 2 की जगह 4 तो बता दो। उसमें भी पर्किंजे इमेज तुम लोग को बताने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो अगर ईसीसी हम करते हैं विच इज एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन, उसमें हम पोस्टीरियर कैप्सूल छोड़ देते हैं तो हमको 3 इमेजेस मिलेंगी, 3 पर्किंजे इमेजेस। एब्सेंस ऑफ लेंस, ऑब्वियसली अगर हम एब्सेंस ऑफ लेंस देखो, तुम डिड्यूस कर सकते हो टॉर्च लाइट में, स्लिट लैंप में, जो हम लोग की एक मशीन है, आप लोग प्लीज देख लीजिएगा डिपार्टमेंट में आके, स्लिट लैंप पे बैठा के हमको दिख जाएगा लेंस है कि नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेंस होता है तो बड़े आराम से स्लिट लैंप पे दिखता है। स्लिट लैंप यू कैन से इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेरी ब्राइट टॉर्च एंड अ वेरी वंडरफुल माइक्रोस्कोप। हमको बहुत ही एनलार्ज्ड और ब्राइट आई दिखती है, तो हम इसलिए बड़े आराम से सब चीज देख लेते हैं। हाई हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। और अगर हम रेटिनोस्कोपी करें, रेटिनोस्कोपी इज अ मेथड टू सी द मैंने एक क्लास में आई थिंक जस्ट पिछले वाले में बोला था कि कभी भी मत बोलना कि रेटिनोस्कोपी इज अ मेथड टू सी द फंडस, बिकॉज दैट इज ऑफ्थैल्मोस्कोपी एंड रेटिनोस्कोपी इज अ मेथड टू सी द रिफ्रैक्टिव एरर। और फिर तुम सामने बैठ के फंडस बोल रहे हो, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि तुमने बोला। हम लोग अब थोड़े में ही खुश हो लेते हैं। सो आपको रेटिनोस्कोपी में जब आप रिफ्रैक्टिव एरर निकालेंगे ऑब्वियसली हाइपरमेट्रोपिया मिलेगा। ऑफ्थैल्मोस्कोपी में हाइपरमेट्रोपिक फंडस मिलेगा, मैं पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें स्मॉल डिस्क मिलता है, शॉर्ट सेल को, वटेवर जितनी चीजें आपको थी सब पढ़ लीजिएगा। Optical defects in aphakia. Eye becomes high hypermetropic as only one converging structure, that is cornea. This is absolutely clear to everyone. क्यों high hypermetropic हो गया है? Is it absolutely anybody को कोई doubts है? Doubt उन्हीं लोगों को होगा जिसने मेरा hypermetropia का क्लास में नहीं अटेंड किया। जिन लोग ने किया उनको नहीं डाउट होगा। Absence of accommodation. Accommodation किस स्ट्रक्चर से होता है हमारी आंख में? किस स्ट्रक्चर से होता है भाई? सिलियरी बॉडी से होता है, लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर अपना शेप चेंज करता है? लेंस। लेंस नहीं है तो अकोमोडेशन होगा आंख में? तो पेशेंट की आंख में अकोमोडेशन कितना होगा? 1, 2, 10% की 0? 0। वेरी गुड, वेरी गुड, पंडित हो गए आप लोग। चेंजेस इन कलर विजन ड्यू टू इंक्रीज एंट्री ऑफ अल्ट्रावायलेट। रिमेंबर हमारा जो लेंस है ना, वो बेचारा रोकता है अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज, ठीक है, रोकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। अब लेंस नहीं है तो ये सारे रेटिना पे जाएगा तो पेशेंट को थोड़ा सा रेडिश या ब्लूइश विजन दिख सकता है, विच इज कॉल्ड एराइथ्रोप्सिया फॉर रेडिश विजन एंड सायनोप्सिया फॉर ब्लूइश विजन, ठीक है। सो आई विल आस्क दिस इन द वाइवा। कलर विजन में कोई चेंजेस होते हैं आपको बताना पड़ेगा, एंड देन आई विल आस्क द टर्म्स ऑल्सो एंड आई विल आस्क द रीजन ऑल्सो, ठीक है। ऑल ऑफ यू प्लीज रिमेंबर दिस, एराइथ्रोप्सिया एंड सायनोप्सिया। ऑप्टिक्स। Who is the topper in this class? Highest marks किसके थे? हाथ उठाओ भाई, बताओ रक्षित कौन है टॉपर? है? आई है? सेकंड कौन है टॉपर? हद्दी हो तुम लोग, क्या इंटरेस्ट लेवल है। अच्छा कोई और अच्छे स्टूडेंट का नाम बताओ अपने आप को छोड़ के। कौन? खड़े हो जाओ।
बैठ जाओ तुमको मैं +1 दूंगी, तुमने जो हिम्मत दिखाई है उसके लिए। कॉमन सेंस क्वेश्चन। तुमने मेरा हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया अटेंड किया था दोनों? ठीक है। Anterior focal distance becomes 23 and posterior focal distance becomes 31 from 24 millimeters. पहले तो आप ये बताओ कि ये anterior focal distance और posterior focal distance बढ़ क्यों जाता है आंख का? ये तो कोई भी बता देगा, कोई भी बता दो भाई। भगवान, जितना तुम लोग को पढ़ा रहे ना उतना तुम लोग और मद्दी होते जा रहे हो। तुम बताओ भाई। बताओ। फोकल डिस्टेंस जहां पे रेज कन्वर्ज होती है वही होता है ना फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट दूर हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है आंख का? हाँ मतलब भाई वो कन्वर्जिंग जो है, अगर अंदर से रेज आएंगी तो इधर है एंटीरियर फोकल, पोस्टीरियर इधर है। तो क्योंकि लेंस एक कन्वर्जिंग, आपने एक कन्वर्जिंग पूरे और पार्ट को आंख का हटा दिया है ना, अकेले कॉर्निया बेचारा क्या ही करेगा। बैठ जाइए। ये तो सवाल ही नहीं था मेरा, ये तो कॉमन सेंस, रेयर सेंस है तुम्हारे बैच के लिए। कॉमन सेंस को मैं रेयर सेंस बोलूंगी, रेयर सेंस। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? आधार, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन है, इनफैक्ट इट इज फॉर एवरीवन, स्पेशली दोज पीपल हु आर सपोजिटली वेरी इंटेलिजेंट। ओके, सो पोस्टीरियर फोकल लेंथ 31 मिलीमीटर्स हो गया है, ठीक है। कैसे इसको पूछे? डायरेक्ट पूछेंगे तो तुम लोग तुरंत बता दोगे। अच्छा चलो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, तब तो बहुत ऑब्वियस सा हो जाएगा। एक किसी पेशेंट में जिसका हम लेंस निकाल लेते हैं, उसमें प्री एग्जिस्टिंग कितना मायोपिया होना चाहिए कि लेंस निकालने के बाद भी उसकी रेज रेटिना पे फोकस हो? कितने डायोप्टर्स का मायोपिया होना चाहिए? सौमिल जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर रहा है। कम ऑन कम ऑन, कौन बताएगा? एनीबडी? बताओ बेटा। यू ऑल नो द आंसर, इट्स देयर ऑन द बोर्ड। एक पेशेंट, हाँ एक आंसर चाहिए मुझे। एक पेशेंट, ठीक है, जिसमें हम आंख से लेंस निकाल लेते हैं, एक छोड़ देते हैं, लेकिन तब भी उसकी आईज, उसकी रेज रेटिना पे फोकस हो रही है, तो उसको प्री एग्जिस्टिंग कितने डायोप्टर्स का मायोपिया था? I have asked this question to MBBS students and I have always got an answer. Please don't make your batch an exception. कोई तो होगा, कोई तो बच्चा होगा जिसमें कॉमन सेंस है। यार यहाँ लिखा हुआ है आंसर, देखो तुम लोग। आई हर्ड द आंसर, किसी ने बोल दिया है करेक्ट आंसर, मैंने सुन लिया यहाँ से। किसने बोला है? हाँ नहीं, 15 नहीं, somebody has said the correct answer. Again I heard it. कितना बोला तुमने? 21. किसने बोला? सौमिल? तुमने? Who said? You? Very good. What's your name बेटा? मेरे जैसा नाम है। वाइवा में मुझे याद दिला देना। वेरी गुड जयंत। आई, हाउ डिड यू कैलकुलेट 21 बेटा? बैठ जाओ। तुम्हारा क्या नाम है? आधार। आधार, अपना आधार स्ट्रॉन्ग करो ऑफ्थैल का, ठीक है? पढ़ो। क्या बात है, एक्सीलेंट, वेरी गुड। प्लीज गिव हिम अ हैंड। Jayant, where did you place in the last MBBS exam among the good students? So you are definitely more intelligent than everyone else sitting here. I want you to do very well in ophthalmology. जरा मेरा भी नाम रोशन कर देना, जया का छोटा सा पार्ट है तुम्हारे नाम में, ठीक है? वेरी गुड जयंत, एक्सीलेंट। बैठ जाओ। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन चाहिए था, जिनको नहीं समझ में आया जयंत से पूछ लेना।
ओके, एस्टिग्मेटिज्म अगेंस्ट द रूल ड्यू टू कॉन्ट्रैक्चर ऑफ लिम्बल स्कार, ये सबको समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि मैंने एस्टिग्मेटिज्म वाले में बहुत डिटेल में ये पढ़ाया था, मैं नहीं जा रही हूँ। ट्रीटमेंट में आप चश्मा दे सकते हैं, स्पेक्टिकल्स, इसमें मैं थोड़ा सा कैवियट लगाऊंगी, मैं बाद में बताऊंगी, अभी आप बस पढ़ लीजिए। कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं, सेकेंडरी इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन कर सकते हैं कुछ दिन बाद एक दूसरी सर्जरी करके, जिसमें कि आप पोस्टीरियर चेम्बर आईओएल डाल सकते हैं, आइरिस क्लॉ आईओएल डाल सकते हैं, एंटीरियर चेम्बर आईओएल डाल सकते हैं, सल्कस फिक्सेटेड डाल सकते हैं, स्क्लेरल फिक्सेटेड डाल सकते हैं आईओएल, मैंने ये सब लिखा नहीं है, ऐड कर लेना तुम लोग, सल्कस फिक्सेटेड आईओएल, स्क्लेरल फिक्सेटेड आईओएल, ठीक है, ये सब आप लोग डाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू स्पेक्टिकल्स, तुम लोग एक चीज पहले जान लो, अगर दो आंख में चश्मे का नंबर एक डायोप्टर डिफरेंट हो तो इमेज का साइज 2% से चेंज हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर इस आंख में चश्मे का नंबर नहीं है और इसमें +1 डायोप्टर है तो पेशेंट को इस आंख से जो इमेज बन रही है, ब्रेन तो फ्यूज करता है ना दोनों आंख की इमेज को। तुम लोग को पता है कि हम लोग, चलो मैं जब तुम लोग को स्क्विंट तो मैं पढ़ा ही नहीं रही हूँ इस बार, बट एनीवे चलो कभी तुम लोग क्लिनिक में मेरा मन किया तो मैं बताऊंगी कि कैसे, हाउ यू कैन टेस्ट कि हमारी, इनफैक्ट यू कैन डू इट वेरी इजली, एक फिंगर ऐसे रखो एंड ट्राई टू हाइड एनीथिंग विद दैट फिंगर एंड देन जस्ट क्लोज बोथ द आईज एंड यू कैन सी योर फिंगर मूविंग, इतना मतलब इतना डिस्टेंस है जो दोनों आंख से जो इमेज बनती है, ठीक है। जस्ट डू दिस, जस्ट पुट योर फिंगर हियर फार फ्रॉम यू एंड क्लोज वन आई एंड यू विल सी योर फिंगर कितना शिफ्ट हो रही है, मतलब हमारी दोनों आंख से इमेज कितना डिस्टेंस पे अलग अलग बनती है। कम इन, टेक योर फोन एंड सिट डाउन, और यू कैन टेक योर फोन लेटर, गो एंड सिट डाउन। तुम क्यों बेटा खुशी के मारे लोटपोट हुए जा रही हो? ग्रे टी शर्ट, क्या हुआ? तुमको हेडेक हो रहा है? जाना है तो जा सकते हो, अटेंडेंस हो गया है। सर नीचे रख लो, मैं तो अभी और पढ़ाऊंगी मैं। तुम लोग का इसके बाद किस चीज का क्लास है? अरे आते हैं वो लोग? अच्छा चलो जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। तो खैर एनीवे, सो इमेज 1 डायोप्टर डिफरेंस में, 2 डायोप्टर डिफरेंस में कितना % डिफरेंस होगा? 4, 3 डायोप्टर में, 4 डायोप्टर में 8। तो रिमेंबर कि अप टिल 2.5 डायोप्टर डिफरेंस तक ब्रेन आराम से फ्यूज कर लेता है। 2.5 डायोप्टर, एंड रिमेंबर अगर प्लस लेंस है तो इमेज बड़ी होती है, और -2 मतलब ये 0 और ये -2.5 हो सकता है, 0 + 2। मेरा कहने का मतलब है अगर प्लस लेंस वाला डिफरेंस है तो इमेज बड़ी होगी, और माइनस लेंस है तो इमेज छोटी होगी, ठीक है। पर इमेज साइज डिफरेंस अप टिल 2.5 मतलब कि 5% इमेज डिफरेंस इन 2 आईज ब्रेन फ्यूज कर लेता है। 2.5 से 4 डायोप्टर तक पेशेंट को बहुत हेडेक होगा, जैसे उसको हो रहा है, ठीक है, पेशेंट को हेडेक होगा। लेकिन 4 डायोप्टर्स या 8% इमेज डिफरेंस से ज्यादा में इमेज डिफरेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि ब्रेन फ्यूज नहीं कर पाएगा और पेशेंट को डिप्लोपिया होगा। अब आप देखिए कि हम पेशेंट को एफेकिया ट्रीटमेंट अगर चश्मे से देते हैं तो हम +10 डायोप्टर्स का चश्मा देते हैं। एंड प्लीज ये एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन तुम लोग रट लो, अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म होता है तो हम मोस्टली +2 डायोप्टर सिलिंड्रिकल एट 180 डिग्रीज देते हैं, ठीक है, अगेंस्ट द रूल एस्टिग्मेटिज्म के लिए। सो ये जो +10 डायोप्टर का हमारा चश्मा हमने दिया, मेरा क्वेश्चन आप लोग से है, कैन वी करेक्ट यूनिलैटरल एफेकिया विद स्पेक्टिकल्स? एक आंख में उसका नॉर्मल है, कोई पावर नहीं, उसका नॉर्मल लेंस है, और इसमें यूनिलैटरल एफेकिया था, उसको क्या हम चश्मे से करेक्ट कर सकते हैं? यस और नो? है आधार? नो, व्हाई? सौमिल अभी तो बताया बेटा, अभी तो बताया है।
भाई मुझे और किसी का नाम नहीं याद है, भाई किसी और से पूछने दो मुझे। ग्रीन टी शर्ट, तुमने पिछली बार बहुत अच्छा जवाब दिया था, बताओ क्यों नहीं करेक्ट कर सकते हैं? नो करेक्ट आंसर है, क्यों नहीं कर सकते हैं करेक्ट? है कितना हो जाएगा इमेज साइज का डिफरेंस? कितना हो जाएगा एग्जैक्ट बताओ। मैं तो बोल रही हूँ +10 डायप्टर्स है इसमें और इसमें 0 है, 20% का डिफरेंस हो जाएगा। ब्रेन फ्यूज कर पाएगा? ब्रेन कहाँ तक फ्यूज कर लेता है आराम से? 5%, 8 तक तब भी थोड़ा बहुत, उसके आगे तो बिल्कुल ही नहीं। बैठ जाओ, इन लोग ने मौका नहीं दिया, नहीं तो तुम दे देते आंसर, मुझे मालूम है, पूरा विश्वास है। ठीक है, सो अगर कोई यूनिलैटरल एफेकिक है उसको हम चश्मा कभी नहीं देते हैं। बायलैटरल है हम दे सकते हैं, दोनों में ही +10 ऐसे नहीं देते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस दे सकते हैं क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस से इवन +10 में इमेज डिफरेंस सिर्फ 2% होता है, एकदम आँख के पास रहती है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, पर मुझे मन है पूछने का, ठीक है, कि मैं ये वाइवा के लिए छोड़ दूं क्वेश्चन। तुम लोग वाइवा में आओगे, जो बच्चा अच्छा जवाब देगा उसी से पूछेंगे। क्वेश्चन क्या है तुम लोग सोच सकते हो कि क्यों हमने जो लेंस निकाला वो तो 15 डायोप्टर्स का था और हम जो चश्मे का नंबर दे रहे हैं वो +10 डायोप्टर्स का है। क्यों भाई? जितना निकाला उतना ही तो देना चाहिए, है? चलो, लेट मी लीव इट इन दी एयर फॉर यू पीपल टू थिंक अबाउट। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग तुम लोग कभी करते भी हो? बहुत बदमाश हो तुम। नाम बताओ अपना, बताओ नाम बताओ, तुम ही से पूछ रहे हैं। द नॉटी गर्ल, व्हाट इज योर नेम? हाँ, भव्या। थैंक यू भव्या। मुझे नाम और फेस याद नहीं रहता है, तो तुम लोग चिंता नहीं करो। एक इसका रक्षित का याद हो गया क्योंकि ये तो वहीं खड़ा रहता है डिपार्टमेंट में सुबह से शाम, बाकी किसी का नहीं याद रहेगा। अच्छा, सेपरेट ग्लासेस देते हैं नियर एंड डिस्टेंस के लिए क्योंकि इतना मोटा पावर में बाइफोकल नहीं हो पाता है, ठीक है। डिसएडवांटेज, नहीं ये नहीं, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी यार। डिसएडवांटेज, प्लीज ओपन दिस डोर, सम टीचर कम्स एंड आई प्लीज ओपन। पीपल आर सो फनी। दोनों खोल दो बेटा, दोनों खोल दो, कोई टीचर आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। एफेकिक ग्लासेस के डिफरेंस, एक तो है मैग्निफिकेशन बाय 25 to 30%, है ना। हाई एनाइजोकोनिया, एनाइजोकोनिया मीन्स डिफरेंस इन इमेज साइज, वही चीज है जो मैं तब से बोल रही हूँ, वही है। इन मोनोऑक्यूलर केसेस रिजल्टिंग इन डिप्लोपिया, डिप्लोपिया मतलब एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज लगेगी पेशेंट को। रिड्यूस्ड विजुअल फील्ड एंड पुअर पेरिफेरल एक्सेंट्रिक विजुअल एक्टिविटी, जस्ट चश्मे के थ्रू देखेगा तो अच्छा दिखेगा, और अगर बाहर से देखेगा तो पेशेंट को अच्छा, मतलब पेशेंट को इधर देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आंख ऐसे हिला के देख लिया, पेशेंट को सर हिलाना पड़ेगा क्योंकि उसको चश्मे के बीच से देखना है, ठीक है। यहाँ से देखेगा तो वो चश्मे के बाहर से देखेगा, उसको कुछ नहीं दिखेगा। सो रिड्यूस्ड visual field. Roving ring scotoma and jack in the box phenomena from prismatic effect of edge of the convex lens. Scotoma मतलब non seeing area, scotoma मतलब non seeing area। तो पेशेंट को बिकॉज ऑफ इतना जो थिक लेंस है +10 का, तो उसके एज से प्रिज्मेटिक इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से अराउंड फिक्सेशन पॉइंट के थोड़ा अराउंड 20, 25, 30 डायोप्टर्स पे 30 डिग्रीज पे एक नॉन सीइंग एरिया बन जाती है। तो पेशेंट अगर आंख हिलाता है, जैसे मैं सपोजिंग इस आंख से एक हूँ, ठीक है, अब मेरा ये है फिक्सेशन पॉइंट से रफली 20 to 30 डिग्रीज के बीच में ये एक स्कोटोमा सा बन गया जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं आंख हिलाऊंगी, अच्छा कुछ नहीं दिख रहा, और सपोजिंग वहां पे एक ये माइक है, ठीक है, अब मैंने आंख हिलाई तो मेरा स्कोटोमा जो यहाँ था वो अब यहाँ बन रहा है, और ये माइक मुझे सडनली दिखने लगा क्योंकि ये मेरे सीइंग एरिया में आ गया। तो पेशेंट को एकदम से लगता है ये तो नहीं था और ये कहाँ से आ गया। सो इसको जैक इन द बॉक्स फिनोमेना कहते हैं, ठीक है। लैक ऑफ हैंड आई कोऑर्डिनेशन, हेवी स्पेक्टिकल्स, अनकंफर्टेबल, इतना भारी, ठीक है। दोज हु वेयर स्पेक्टिकल्स वुड नो। कॉस्मेटिकली इट लुक्स वेरी बैड, यू नो, यू कैन सी हाई हाइपरमेट्रोप्स व्हेन दे आर वॉकिंग टुवर्ड्स यू। अगर एफेकिक करेक्शन चश्मे में लेके आ रहे हैं, क्यों, कैसे पता चलेगा? कॉन्वेक्स लेंसेज क्या करते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं, तो चश्मे के पीछे उनकी आंख कैसी दिखेगी, बड़ी बड़ी। तो बहुत बुढ़े बाबा आएंगे, उनकी बड़ी बड़ी आंख रहेगी, है ना, दे लुक सो क्यूट, बट आई एम श्योर नोबडी एल्स वुड रियली वांट दैट, है ना। इट लुक्स abnormally big, it does not look big and beautiful, it just looks like really big and patient needs to, so all these things are there. कॉन्टैक्ट लेंस करेक्शन हम दे सकते हैं यूनिऑक्यूलर इफेक्ट्स में, बिकॉज इमेज मैग्निफिकेशन इज आई थिंक 1 डायोप्टर पे बहुत ही कम होता है, तो टोटल 10 में 7 to 8% ही होता है, ठीक है। और यंग चिल्ड्रन में हम
जहाँ अभी हम यंग चिल्ड्रन में सेकेंडरी IOL इम्प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, तो हम तब तक उनको, जैसे कि आपने 6 महीने के बच्चे का कैटरैक्ट हटाया, ठीक है, तो हम उसमें उस समय क्योंकि आई की ग्रोथ नहीं हुई है तो हम अंदर इंट्राओक्यूलर लेंस नहीं डाल सकते हैं, तो हम ऐसे बच्चे को चश्मा तो क्या ही देंगे, कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं। 2 साल के नीचे तक के बच्चे को कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, उसके बाद नहीं। कैन एनीवन टेल मी व्हाई? सब कॉमन सेंस है, सब कॉमन सेंस है। इधर पूछते हैं कुछ। सो गई वो लड़की। उठो 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 बेटा, उठो उठो। यस, सिटिंग सेकंड एकदम। हाँ, आप उठिए उठिए। क्या बोला अभी मैं? आप तो, अरे तुम तो बड़ी एक्टिव लग रही हो। रुको, तुम खड़े रहो। तुम जो सो रही थी, खड़े हो। क्या पूछा मैंने? बाकी सब नहीं, मतलब 2 साल से बड़े को क्यों नहीं लगाएंगे बताओ? चलो तुम बताओ। आप खड़े रहिए, आप सो रहे थे। हाँ, तुम्हारे पीछे जो तुम्हारे से मैचिंग टी शर्ट पहन के बैठा है, बताओ बेटा। ये सब कॉमन सेंस। तो सोचो ना कि 2 साल से छोटे में तो हमने कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया, थोड़ा 2 साल तक का से बड़ा हो गया तो हम नहीं लगा रहे, क्यों भाई? क्योंकि 2 साल से छोटा बच्चा बेचारा कुछ नहीं, उतना नहीं कर पाता है। 2 साल तक होते होते बड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो नोचने वोचने लगेगा। ठीक है, आप नहीं लगा सकते। ठीक है, सेफ नहीं है, इज अ गुड आंसर। चलो, डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज, फिटिंग एंड रिमूवल ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस। ये बेचारे जो बुढ़े लोग हैं, है ना, हमने बोल तो दिया बड़े आसानी से, भाई बोल तो दिया, बैठ जाओ, क्यों खड़े हुए हो? इतने बुढ़े लोग जो है, डेक्सटेरिटी ओल्ड एज में कम हो जाती है। हम एंड दे आर, आप सोचिए ना, जो एफएके का मतलब स्पेशली अगर हाइजीन कितना मेंटेन कर पाएंगे, कितनी डेक्सटेरिटी है, रोज लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, कर पाएंगे कि नहीं? ठीक है। सो और क्रॉनिक यूज ऑफ कॉन्टैक्ट लेंस से धीरे धीरे मतलब देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशंस आल्सो, राइट, एंड ऑफ कोर्स द रिकरेंट एक्सपेंडिचर। सो सेकेंडरी आईओएल इम्प्लांटेशन बेस्ट है। इसमें मैग्निफिकेशन तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है, नो ऑप्टिकल, हम अंदर ही डाल देते हैं। सो आप एट द, ये तो छोड़ ही दो। सेकेंडरी आईओएल इम्प्लांटेशन हम जनरली एफएके का आई में सेकेंड सर्जरी करके करते हैं। हम लेंस कहाँ कहाँ डाल सकते हैं? अगर पोस्टीरियर कैप्सूल सही है तो इन द बैक डालेंगे। एंटीरियर चेम्बर मतलब आइरिस के ऊपर डाल सकते हैं। सिलियरी सल्कस एक होती है छोटी सी जगह, उसमें फंसा सकते हैं, बहुत जगह है। ठीक है। सो इन द बैक, पोस्टीरियर चेम्बर और सल्कस फिक्सेटेड। सो ये इन द बैग है। सी, आई डोंट नो यू पीपल कैन मेक आउट और नॉट, what the heck, right? Yeah, so see this is the, ये वाला जो सी शेप्ड है, ठीक है, उल्टा सी शेप्ड, दैट इज द बैग। एंड ये जो एक जो दिख रहा है ये लेंस है, ये उसका ऑप्टिक है, और ये जो उसमें जो 2 लाइंस ड्रॉ की गई हैं ये उसका हैप्टिक है, ये आइरिस बनाया गया है। ठीक है। सो ये इन द बैग प्लेसमेंट है। ये हम तभी कर सकते हैं अगर पोस्टीरियर कैप्सूल सही है, अगर टूटी हुई है तो नहीं कर सकते। यहाँ पे इन लोग ने दिखाया है कि पोस्टीरियर कैप्सूल टूटी हुई है, तो किसी तरह सिलियरी सल्कस में फंसा दिया है इन लोग ने लेंस को। ठीक है, आई हैव नॉट मेड दीज डायग्राम्स। यहाँ पे इन लोग ने आइरिस के ऊपर रखा। इज दिस अ फिजियोलॉजिकल पोजिशन टू प्लेस अ लेंस आइरिस के ऊपर? इट इज नॉट। आइरिस चेफिंग होता है। ये जो एंटीरियर चेम्बर की एंगल है ना, यहाँ पे ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है, यहाँ पे, यहीं से एक्वेस आउटफ्लो होता है, तो एक्वेस आउटफ्लो नहीं हो पाता है, ग्लोकोमा हो जाता है पेशेंट को, दुनिया भर की चीजें होती है। आइरिस चेफिंग की वजह से यूवियाइटिस हो सकता है। ठीक है, ये सब। सो देयर इज हायर रिस्क ऑफ एंटीरियर चेम्बर आयल में मैंने लिखा भी हुआ है, कॉर्नियल एंडोथीलियल डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो ऐसी जगह रखा है जहाँ पे होना नहीं चाहिए कोई फॉरेन बॉडी। ठीक है। यूजीएच सिंड्रोम में यूवियाइटिस, हेमोरेज एंड ग्लोकोमा हो सकता है। ओके। एनाइजोमेट्रोपिया मैंने आप लोग को पढ़ा दिया। इज द कंडीशन इन विच रिफ्रैक्टिव या refraction in the two eye is different. A 2.5 difference in the two eyes causes a 5% difference in image size. Up till 2.5 diopter difference in image size, the eye can tolerate. 2.5 to 4 diopter, it causes eye strain. Greater than 4 diopters, patient will have diplopia. That's the end.